اسرائیلی فورسز کے لبنان پر حملے جاری، مختلف علاقوں میں بدترین بمباری کی گئی۔ اسرائیلی فورسز کی بیروت کے جنوبی مضافات میں گولہ باری سے مزید 48 لبنانی شہید جبکہ 122 سے زائد زخمی ہو گئے۔ لبنان میں شہداء کی مجموعی تعداد 3445 ہو گئی، 14599 افراد زخمی ہو چکے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں 6 اسرائیلی فوجی جہنم واصل ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں اپنے 6 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ روس، مصر نے لبنان اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں اسموگ اور دھند کا راج برقرار۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی دنیا بھر کے شہروں میں دوسرے نمبر پر براجمان۔ بری کے علاوہ تمام اضلاع کے اسکول 24 نومبر تک بند رہیں گے۔ اسموگ کے باعث لاہور اور ملتان میں تمام تعمیراتی کاموں پر مکمل پابندی ہوگی، جبکہ قومی سطح کے تعمیراتی کاموں کی اجازت ہوگی۔ ہیوی ٹریفک کے لاہور اور ملتان میں داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ دونوں شہروں میں اینٹوں کے بھٹوں اور فرنس انڈسٹری کے کام پر بندش ہوگی۔ اسموگ ایمرجنسی کے تحت لاہور اور ملتان میں ریسٹورنٹ صرف 4 بجے تک کام کریں گے۔ دونوں شہروں میں ریسٹورنٹ کو 4 سے 8 بجے تک ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ 8 بجے کے بعد ریسٹورنٹ مکمل بند رہیں گے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے 12 تا 15 نومبر مشن چیف نیتھن پورٹر کی سربراہی میں مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں سے بھی بات چیت ہوئی۔ مذاکرات میں نجی شعبہ کے نمائندوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ آئی ایم ایف اعلامیے کے مطابق معاشی امور پر پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ حالیہ بات چیت آئی ایم ایف کی 6 ماہی جائزہ کے لیے کی گئی۔ مذاکرات میں معاشی اصلاحات، معاشی پالیسیز اور معاشی ترقی کے لیے حکومتی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پورٹر نے کہا کہ پاکستان سے مذاکرات مجموعی طور پر مثبت رہے۔ پاکستان آرمی کا دیوسائی سکردو میں ریسکیو آپریشن مکمل۔ پاک آرمی کی زمینی ٹیم نے تمام 15 مسافروں کو ریسکیو کر لیا۔ 14 نومبر کو 15 مسافر 2 گاڑیوں میں گلتری سے بذریعہ دیوسائی سکردو جا رہے تھے۔ شدید برف باری کی وجہ سے مسافر دیوسائی میں پھنس گئے۔ مسافروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ مسافروں کے اہل خانہ اور علاقے کے لوگوں نے پاک آرمی سے مدد کی اپیل کی تھی۔ پاک آرمی نے اپیل پر فوراً ہوائی اور زمینی ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ پاک آرمی کے جوانوں پر مشتمل جوائنٹ ٹیم مسافروں کو ریسکیو کرنے کے لیے پیدل روانہ ہوئی۔ پاک آرمی کی زمینی ٹیم نے انتہائی سرد اور برف باری کے باوجود ریسکیو آپریشن جاری رکھا اور مسافروں کو کامیابی کے ساتھ ریسکیو کر لیا۔ پنجاب میں اسموگ کے باعث نظام درہم برہم۔ حکومت نے مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ کیا اور محکمہ موسمیات نے بارش کی تصدیق بھی کر دی۔ حکومت پنجاب نے دعویٰ کیا کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں پنجاب ایک بار پھر آگے نکل گیا اور مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے تصدیق کر دی کہ جہلم، چکوال اور گوجرخان میں سیڈ کلاؤڈنگ کے نتیجے میں جہلم اور گوجرخان میں بارش ہوئی۔ ماہرین نے بتایا کہ دوپہر 2 بجے کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی تھی، جس سے جہلم اور گوجرخان میں چند گھنٹوں بعد بارش ہوئی اور کلاؤڈ سیڈنگ کے اثرات لاہور میں بھی بارش کی صورت برآمد ہونے کا قوی امکان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج برداشت اور رواداری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی یوم برداشت اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، جس کی منظوری جنرل اسمبلی نے 16 نومبر 1996 کو دی اور یہ دن پہلی مرتبہ 2005 میں منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے میں برداشت، صبر و تحمل کی اہمیت اور عدم برداشت کے منفی اثرات سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر انسانی حقوق کی تنظیمیں خصوصاً اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور منافرت کی روک تھام اور اس پر سزا کی ضرورت کو بھی اجاگر کریں گی۔ برداشت اور رواداری کے دن کو منانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ انہیں
दूसरों के अकायद और हुकूक का एहतराम करना सिखाया जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि नफरत और तासुब का जहर मुआशरे को खोखला कर देता है। बर्दाश्त के आलमी दिन पैगाम जारी करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में रवादारी बर्दाश्त की शानदार मिसालें कायम की। हमें उन पर अमल करना है। रवादारी, एहतराम और बर्दाश्त कामयाब और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि दुनिया मुख्तलिफ अकायद, सकाफतों और नजरियात का इम्तिसाज है। सबका एहतराम लाजिम है। कायद-ए-आज़म के अफकार की रोशनी में बर्दाश्त और हम आहंगी को फरोग दे रहे हैं। तालीमी इदारे भी नौजवान नस्ल को बर्दाश्त, एहतराम और मोहब्बत के उसूल सिखाए। ऐसा मुआशरा तरजीह है जो हर शहरी को मसावी मौक़े और हुकूक फराहम करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर ने कहा है कि टेक्नोलॉजी ने मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी से गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, आलमी सतह पर मुआशियत, अफवाज, टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां रोनुमा हो रही है। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर, रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर बड़ा चैलेंज है। उनका कहना था कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। पाकिस्तान खित्ते आलमी अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार हमेशा अदा करता रहेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़ल्ज़ल है। आर्मी चीफ ने कहा कि मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रिजीम कायम की गई। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से हजारों सिख यात्री ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की। गुरुद्वारा जन्म स्थान से निकलने वाला नगर कीर्तन इख्तिताम पजीर हो गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा क्यारा साहब से वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। कमिश्नर लाहौर और RPO का ननकाना साहब ने दौरा किया और नगर कीर्तन जुलूस के रूट का मुआयना किया। DC दफ्तर में मरकजी कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर में जुलूस की मॉनिटरिंग के अमल का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि बानी PTI की अपनी हुकूमत में कारकर्दगी सिफर रही। खलल ना डाला गया तो हम मुल्क के हालात संवार लेंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ तबाह हाल मुल्क की मईशत को फिर बेहतरी की तरफ गामजन करने के लिए कोशा हैं। उन्होंने कहा कि हमने बानी PTI के दौरे इक़्तिदार में बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। 3 बार मुल्क का वजीर आजम रहा, इसके बावजूद अपनी अहलिया के इंतकाल की खबर जेल में मिली। सरबराह मुस्लिम लीग नून का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हमें किस बात का ताना देते हैं। उन्होंने मुल्की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अदलिया से साजबाज करके एक मुंतखब वजीर आजम को हटाया। लाहौर पुलिस ने रवां साल के दौरान इंसदाद स्मोक कार्रवाइयां करते हुए स्मोक का बाइस बनने वाले अनासिर को 1 करोड़ 84 लाख रुपए से जायद के जुर्माने कर दिए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक एंटी स्मोक एक्शन प्लान के तहत क्रैकडाउन जारी। रवां साल स्मोक का बाइस बनने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में 212 मुकदमात दर्ज करके 228 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि 1 करोड़ 84 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि रवां साल 50,000 से जायद गाड़ियों को चेक किया गया और धुआं छोड़ने वाली 4,000 से जायद गाड़ियों को चालान किए गए। फिटनेस सर्टिफिकेट्स न होने पर 4,000 गाड़ियों के कागजात जब्त, जबकि 5,000 से जायद गाड़ियां जब्त की गईं।
सिंध हुकूमत में बड़ी तब्दीलियां। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एक्साइज, निजमी आलम से फिशरीज, लाइफ स्टॉक और मोहम्मद अली मलकानी से बोर्डिंग यूनिवर्सिटी का कलमदान वापस ले लिया गया। मुकेश कुमार और बाबुल खान भैयों की दोबारा सिंध काबीना में एंट्री। वज़ीर आला सिंध के 3 एडवाइजर और 10 मुआवनीन खुसूसी को भी कलमदान सौंप दिए गए। सिंध काबीना में बड़ी तब्दीलियां करते हुए मुकेश कुमार चावला वज़ीर एक्साइज तैनात कर दिया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एक्साइज का कलमदान वापस ले लिया गया, जबकि मोहम्मद अली मलकानी से बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का कलमदान वापस लेकर उनको लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज का वजीर बना दिया गया। सिंध काबीना में दोस्त अली रहमू को वजारत से हटाकर मुशीर बना दिया गया, जबकि बाबुल खान भैयो महकमा जंगलात के मुशीर तैनात होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रद्द अमल देते हुए कहा कि बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जामात आयद करते हुए कहना था ये स्टैब्लिशमेंट के सहारे नतीजे बदल कर जीत का ऐलान आरोज के जरिए करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि धांधली के जिस सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतर चुकी है उससे ये वाज़ेह हो गया कि इसका चिराग बुझने वाला है। अवाम इन नताइज को मुस्तरद करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची के अवाम का शुक्रिया जिन्होंने एक मर्तबा फिर जमात इस्लामी पर एतमाद किया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे वजीर पाक पेशावर में अदा की जाएगी। मरहूम इलियास बलोर ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर और शहीद बशीर अहमद बलोर के भाई थे। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर ने अमली सियासत का आगाज नेशनल पार्टी की रुकनियत से किया था। कौमी असम्बली के रुकन और सेनेटर भी रह चुके हैं, जबकि सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और मुख्तलिफ चैम्बर्स के आला मुंतखब ओहदों पर भी फाइज रहे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा लोग महंगाई से मर रहे हैं और किसी को परवाह नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर मैं कुछ नहीं कह सकता, असल मसाइल की तरफ आएं। शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा कि मेरे ऊपर 14 मुकदमात हैं। इस्लामाबाद में एक मुकदमे में कल बरी हुआ हूँ। मेरे ऊपर रावलपिंडी में 14 मुकदमात बनाए गए, सब में पेश हो रहा हूँ। उम्मीद है मैं मुकदमात में सुरखरू होऊंगा। नौ मई के मुकदमात की तहकीकात के लिए कायम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने PTI के 16 कारकुनान को बेगुनाह करार दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस की समाअत हुई। ATC के जज मंजर अली गुल ने केस की समाअत की। PTI के 39 कारकुनान उबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत पेश हुए। GIT ने मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश की। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट में 16 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दिया। GIT की रिपोर्ट की रोशनी में वकलाए सफाई ने बेगुनाह होने पर मुल्जिमान की उबूरी जमानत वापस लेने की सदा की, जो अदालत ने मंजूर कर ली, जबकि दीगर मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने के लिए उबूरी जमानत में 29 नवंबर तक तौसीह कर दी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं तूबा मुजाहिद।